Hello everyone. So yesterday in science and technology we discussed some important topic which is related to science based topic which is related to 1 minute. Yes. So science and technology we discussed yesterday science and technology. Okay. In this we discussed deep fake. In this we discussed quantum computing, supercomputer. Okay, and quantum computing, supercomputer. Wait a minute. Yes. So science and technology. In this we discuss the supercomputer, deepfake, IT, and today we are going to discuss about the space technology. As I yesterday told that in next session we'll go to discuss about the space technology. Space technology, in that we'll discuss the Chandrayaan. Our first mission will be the mission Chandrayaan. Okay, that is Chandrayana and 3. Chandrayana 3. It is Satish Dhawan Space Station, Satish Dhawan Station, Shri Harikota, Shri Harikota. Okay, Satish Dhawan Shri Harikota, that was launched by vehicle launch है इसका geosynchronous MK थर्ड, जियोसिंक्रोनस एंड MK थर्ड लैंडर प्रोपल्शन एंड रोवर होता है. इसमें एक लैंडर होगा, एक प्रोपल्शन होगा एंड एक होगा रोवर. ठीक है, लैंडर प्रोपल्शन एंड द रोवर होगा. इसमें सेफ एंड स्मूथ लैंडिंग करनी है, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है. कहाँ पर? आपको लूनर सरफेस पर. इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. ये क्या है? एक इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. ठीक, सो यहाँ पर सबसे पहले है जैसे चंद्रयान 3. ओके, चंद्रयान 3. सो इसमें एक है रंबा प्रोब. ओके, रंबा. देन है चेस्टे, मीन्स चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है. एक है इल्सा, मतलब सिस्मिक एक्टिविटी देखने के लिए. सिस्मिक एक्टिविटी के लिए है इल्सा, चेस्टे. एंड रोवर जो है, रोवर के अंदर आ जाएगा. ये तो हो गए लैंडर, तो लैंडर तो हो जाएगा रंबा एंड इल्सा एंड चेस्टे. एंड रोवर जो है दैट इज APXS एंड लिप्स. APX मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. एंड दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोमीटर. लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोमीटर. ओके,
देन है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन के अंदर आएगा स्पेक्ट्रो हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। स्पेक्ट्रो हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ओके, तो चंद्रयान में क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी? सो हमें जो फाइंडिंग्स what findings we want to do in the Chandrayaan mission. So the first finding is about the temperature. So 20 to 30 degrees Celsius will be the temperature. Second finding will be the sulfur. Elements of the presence of the sulfur and thin plasma radio wave can easily be detected in this natural seismic activities. And crater. Crater क्या होते हैं? Crater is a water body small that will also be found out in the Chandrayaan. अब एक लूनर सॉली है, लूनर सॉइल। तो लूनर सॉइल्स को अगर डिटेक्ट करना है तो देयर वाज ए प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर इज आल्सो सेंट देयर एंड दिस इज फॉर इंडियन इसरो का लोगो है फॉर लूनर सॉइल। एंड नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ऑर्गेनिक मैटर एंड regolith and agglutinates and ISRO is also successfully gone to the Chandrayaan 3 असिस्ट किया गया है जिसमें सेलेस्टियल बॉडी को, ठीक है, इसरो ने। सो देयर इज ए ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 1 जो आया था दैट वाज इन 2008 एंड चंद्रयान 2 दैट इज इन 2019। इंडिया के है ये। यहाँ पे एक एटलस था एंड जिसमें एक्सरे के सिग्नल्स देखे जाते थे एंड ओसीन मैग्मा हाइपोथेसिस वाज आल्सो इंक्लूडेड। बट इन Chandrayaan 2 that was in 2019 we are going to find out the hydroxyl oxide radical and water and other than this argon 40 detected and the solar flares Okay, now this is a Chandrayaan 3. Okay, so this time this mission is a Chandrayaan 3 mission. So recently lunar mission was planned and this was both other countries are also there who are planning for the lunar mission. So I'm describing about that missions also. So first is the South Korea and mission name is Donuri. Okay, next mission is जापान के मिशन का नाम है होकुतो आर मिशन। यूएई भी है और जापान भी है, ठीक है। नेक्स्ट है रशिया का मिशन है लूना 25। यूएसए का मिशन है दैट इज आर्टेमिस ऑन द मून। सो रशिया का तो है लूना एंड 25 एंड यूएसए का है आर्टेमिस एंड होकुतो इन द जापान एंड साउथ कोरिया का है डोनोरी एंड इजराइल का मिशन जो है दैट इज बेयरशीट मिशन 2. It is lunar landing by 2025. All of this will, जैसे साउथ कोरिया का मिशन है डोनोरी दैट वाज इन 2022, जापान का भी 2022 में एंड रशिया का जो मिशन है रशिया का लूना दैट वाज 2023 एंड यूएसए का 2025 आर्टेमिस एंड इजराइल का है बेयरशीट दैट इज फ्रॉम द इजराइल and this mission reach in the 2025. Okay, so now other important features are like Chandrayaan ki soft landing. So soft landing, where we want to go for the soft landing, that is the south pole of the moon and in this there is Shiv Shakti point. So what we found in the Chandrayaan mission, so first is the Shiv Shakti point. Okay, first one is Shiv Shakti point and the second one is the Vikram क्या है? ये लैंडर। Vikram is a lander and Pragyan is a rover. Okay, Pragyan is a rover and there is a तिरंगा point. तो तिरंगा point तो Chandrayaan 2 के टाइम पे लाए थे हम तिरंगा point को and this Chandrayaan 3 we found out the Shiv Shakti point in Chandrayaan 3 and Chandrayaan 2 के टाइम पे हम क्या लाए थे? तिरंगा point. Okay, now next is National Space Day.
सो ये स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 23 में, ठीक है। सो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, देन मेजरमेंट किया जाएगा एंड स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मून। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ओवर द मून आर, सबसे पहला चैलेंज है डिफिकल्ट ट्रेन, डिफिकल्ट ट्रेन, ठीक है। ट्रेन डिफिकल्ट है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड, और लूनर डस्ट, लूनर डस्ट, ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है दैट इज लार्जर लैंडिंग साइट, इंक्रीज द लैंडिंग वेलोसिटी एंड इम्प्रूव द थ्रस्टर। सो यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, कैरिंग कैपेसिटी। सो देयर इज द सॉफ्ट लैंडिंग प्रोसेस करना है हमें, ठीक है। दैट इज एल्टीट्यूड यूजिंग द विक्रम फॉर द फास्टर स्पीड, टर्मिनल डिसेंट्स भी है यहाँ पे। सो दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो यही था कि डिफिकल्ट ट्रेन है, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हमें थ्रस्टर्स को इम्प्रूव करना होगा, अदर इक्विपमेंट्स को भी इम्प्रूव करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी, दैट ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स वी नीड टू डू देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज द साउथ पोल। हम कहाँ जाने वाले हैं? साउथ पोल ऑफ द मून में जाने वाले हैं, ठीक है। सो साउथ पोल ऑफ मून में हम फाइंड आउट करेंगे, पहले तो है क्रेटर्स, फिर हम फाइंड आउट करेंगे वाटर, ठीक है। तो जैसे ये मून है, दिस इज ए मून, तो यहाँ पे कॉपरनिकस क्रेटर होंगे, सेरेनिटी, दिस इज द इक्वेटर, टाइको क्रेटर, यहाँ पे एक क्रेटर है जिसका नाम है टाइको क्रेटर, और ये जो साउथ पोल है यहाँ पर लैंड किया था अभी इसने, चंद्रयान 3 ने, ठीक है। तो अभी हमें मरकरी, सिल्वर, काफी सारे और भी एलिमेंट्स यहाँ पे फाउंड हुए हैं। नेक्स्ट इज टाइडल लॉकिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइडल लॉकिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइडल लॉकिंग? सो इसरो जो है, इसरो, ओके, इसरो इज प्लानिंग द रिवाइव द लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान विच वर पुट टू स्लीप टू सर्वाइव द लूनर नाइट। तो लूनर नाइट में इसरो प्लान कर रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान को भेजेगा, ठीक है। तो इसमें पोस्टपोन कर दिए थे प्लान्स पहले भेजने के, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन इज ए सोलर पावर्ड। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 जो है ये एक सोलर पावर्ड मिशन था। कौन सा था? सोलर पावर्ड मिशन था, ठीक है। एंड दिस इज कोइंसाइड विद द डे लाइट पीरियड ऑन द मून, और ये डे लाइट पीरियड जो होता है उसके कोइंसाइड है ना। इसमें ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज जो होता है वेरी हाई होता है मून में, इसीलिए मिशन इज इलेक्ट्रॉनिक टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की जरूरत थी। देन लैंडर एंड रोवर वर पुट इनटू द हाइबरनेशन ए लिटिल बिफोर लूनर सनसेट। तो हाइबरनेशन की कंडीशन जो होती है, कूलिंग कंडीशन, वहां पर इसको पुट किया गया। देन इसके समय डे टाइम टेम्परेचर था 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था डे टाइम में, और नाइट टाइम में जो टेम्परेचर होता है -208 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या -130 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट में है -208 और -130 इन्हें टेम्परेचर सेल्सियस। और एक और प्रॉब्लम है चंद्रयान में, यहाँ पर एक तो एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, नो एटमॉस्फेयर, और टाइडल लॉकिंग होती है, टाइडल लॉकिंग बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। तो लूनर डे का मतलब क्या होता है? लूनर डे इज ए टाइम मून टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस विद द सन। सो लूनर डे का मतलब होता है कि जब चंद्रमा अगर सन को एक रोटेशन दे दे, ओके। सो 29 अर्थ डे में चंद्रमा एक रोटेशन दे देता है 29 अर्थ डे में। सो शेप ऑफ द मून होता है कि डिफिकल्ट टू कीप द स्पेसक्राफ्ट सिस्टम अलाइव, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है यहाँ पर, ठीक है, नाइट के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और रिसर्च की ज़रूरत है हमें। और नाउ नेक्स्ट इज टाइडल लॉकिंग में हमें पढ़ना है अब टाइडल लॉकिंग। सो टाइडल लॉकिंग ओनली वन साइड ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल टू द अर्थ। क्या होता है कि वन साइड ऑफ द मून जो होता है वही क्या होता है? विजिबल होता है, विजिबल टू द अर्थ, एंड दैट इज कॉल्ड द tidal locking. So there is a relatively smoother, thinner crust and has a large volcanic plains also. तो ये तो हो गया अपना अर्थ।
और यहाँ से ये है मून, सो दिस इज द मून, ये मून, मून एंड मून, ठीक है, ये इस तरीके से इसको रोटेशन ले रहा है। सो दिस इज द इल्यूमिनेशन। तो जो फार नियर साइड है, नियर साइड में क्या होता है कि अबाउट 60% ऑफ द अर्थ जो है ये विजिबल होती है, दिस इज विजिबल, एंड इन द फार साइड, in the far side about 40% of the earth is visible, earth is visible, okay। so चाइना ने एक मिशन भेजा है, चाइना का मिशन है चैंगी 4, नेम इज चैंगी 4, चाइना का मिशन है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चंद्रयान मिशन, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चंद्रयान मिशन। Now next mission है हमारा आदित्य L1, this is for the solar mission, so आदित्य L1 and आदित्य L1 mission, that is not a lunar mission, that is a solar mission, okay। next mission is आदित्य L1 mission, okay, आदित्य L1 mission है। so आदित्य L1 जो है इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है, दिस इज द सोलर मिशन एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है इंडिया का फर्स्ट। PSLV C55, तो PSLV C55 जो है दैट इज द लॉन्च व्हीकल, नेम इज PSLV C55 और ऑब्जेक्टिव है कि सोलर अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, कोरोनल स्टडी करेगा, सो कोरोनल हीटिंग, ठीक है, कोरोनल हीटिंग एंड क्रोमोस्फेरिक हीटिंग। नाउ सोलर फ्लेयर्स एंड वेदर कंडीशंस, ठीक है, इन सब की ये स्टडी करेगा, ठीक है। इसके अंदर विजिबल इमिशन कोरोनोग्राफ होगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सो देयर विल बी ए टेलीस्कोप। एंड नेक्स्ट इज L1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, टेलीस्कोप भी होगा, स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा। तो हमें क्या करना है, लैग्रेंजे पॉइंट जो होता है, Lagrange points are there and we are going to study the Lagrange point। तो ये जैसे सन है, सन के इधर इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मून है। तो ये जो पॉइंट है L1, L4, L3, L5, L2, ठीक है, इन Lagrange पॉइंट का क्या करना है, स्टडी करना है। सो टू स्टडी दिस ऑल Lagrange पॉइंट इन दिस सिस्टम एंड देयर इज ए सोलर फ्लेयर्स की स्टडी हो जाएगी, एनर्जी कितनी है, डायरेक्शंस क्या हैं, लैग्रेंजे पॉइंट्स जो हैं, लैग्रेंजे पॉइंट की पोजीशन इन द स्पेस, स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज बॉडीज इक्वल। जब दो लार्ज बॉडीज का ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू नेसेसरी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जब इक्वल आ जाता है, दैट इज लैग्रेंजे पॉइंट के अंदर होता है ऐसा। सो लैग्रेंजे point is when two small body जो होती है, ठीक है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे लैग्रेंजियन पॉइंट जो L1, L2 एंड L3 है दैट इज तो स्टेबल है, ये तो अनस्टेबल पॉइंट है, और जो L4 और L5 है ये जो है ये स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें यहाँ पर है हमारी मून एंड यहाँ से इस तरीके से कुछ पॉइंट्स इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आदित्य L1, फिर ये L3 है, ये L5 है, यहाँ पर है L4, यहाँ पर है L2, L1 एंड L3। तो ये जो पूरी लाइन है दिस इज अनस्टेबल, बट L4 एंड L5 जो है दैट इज स्टेबल, ठीक है। तो सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन भी है,
तो ये नासा का मिशन है, सोहो मिशन, सोलर हेलियोस्फेरिक मिशन, दैट इज नासा का। नासा एंड यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, ये दोनों सोहो मिशन भेज रहे हैं। सोहो मिशन का नाम है सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप होगा यहाँ पर, नासा के पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है। और नेक्स्ट इज पार्कर मिशन, जो कि किसका था, जो भी नासा का ही था। पार्कर मिशन दैट इज ऑल्सो नासा, पार्कर मिशन नासा एंड सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी होती है, सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी एंड दैट इज ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और कुफू मिशन जो है दैट इज चाइना, सो कुफू मिशन है, कुफू 1, एंड ये एक चाइना का मिशन है, कुफा मिशन, ठीक है, कुफू मिशन। सो आदित्य मिशन में करना क्या है, टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर ऑफ द रेडिएटिव जोन, टू स्टडी द सबसरफेस, फोटोस्फीयर, सनस्पॉट, फ्लेयर्स, क्रोमोस्फीयर, कोरोना एंड द कोरोनल होल, ठीक है। तो फोटोस्फीयर क्या होता है, जो कि 445 फोटोस्फीयर वो होता है जो कि डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन होती है, ठीक है। अब जैसे ही एक सन है, ये एक सन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ लेयर्स बनी हुई हैं इस तरीके से। तो सबसे बाहर की जो लेयर है इसको कोरोना बोलेंगे, फिर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो क्रोमोस्फीयर आ जाएगा, क्रोमोस्फीयर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ फ्लेयर्स दिखेंगी हमें, और यहाँ कुछ सन स्पॉट्स भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर थोड़ा अंदर होता है और क्रोमोस्फीयर थोड़ा बाहर होता है। फिर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जोन्स होंगे, पहला होगा इंटरनल स्ट्रक्चर जोन, फिर होगा रेडिएटिव जोन एंड लास्ट में होगा कन्वेक्टिव जोन, कन्वेंशनल करंट अंदर की ओर होती है, रेडिएटिव जोन होगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर कोर होगा, स्ट्रक्चर के अंदर एक कोर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है कोरोनल होल, यहाँ पर क्या है, कोरोनल होल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटोस्फीयर है वो डीपेस्ट है, तो फोटोस्फीयर जो होता है वो डीपेस्ट होता है, और इसकी जो टेम्परेचर होता है दैट इज 6500 किलोमीटर। कोरोनल होल्स जो होते हैं ये डार्क एरिया जैसे सोलर कोरोना में पाए जाते हैं, और क्रोमोस्फीयर जो है दैट इज 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा क्रोमोस्फीयर में। और ये जो लेयर है 400 किलोमीटर से 2100 किलोमीटर तक होती है, और ट्रांजिशनल रीजन जो होता है वेरी नैरो, 100 किलोमीटर का एरिया होता है। फिर कोरोना जो है ये आउटर लेयर है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोरोना का बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 500,000 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। कोरोनल होल्स होंगे, सोलर प्रोमिनेंस होगा, सोलर फ्लेयर्स भी होंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। अब सोलर विंड क्या होती है, सोलर विंड, ठीक है। तो सोलर विंड जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा, ये दोनों मिलकर के सोलर विंड को डिटेक्ट कर रहे हैं, दे बोथ आर गोइंग टू डिटेक्ट दिस। इसके लिए इन्होंने पिक्टो फ्लेयर्स जेट्स भी यूज में लिए हैं, पिक्टो फ्लेयर एंड जेट्स भी यूज में लिए हैं। अर्थ में मैग्नेटोस्फीयर होता है जिसकी स्टडी करनी है हमें, जो कि मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सो देयर इज ए मैग्नेटोस्फीयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटोस्फीयर एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट मिशन है हमारा, सो नेक्स्ट मिशन इज गगनयान मिशन। सो 2 मिशन हम कर चुके हैं, वन वाज द PSLV C57 that is the Adityan one, and geosynchronous MK3 that is the Chandrayaan mission. Now next mission is Gaganyaan mission. This Gaganyaan mission जो है name of the astronaut have been announced the Gaganyaan. तो यहाँ पे कुछ astronauts थे, ठीक है, astronauts ने इसका नाम गगनयान दिया है, ठीक। फ्लाइट टेस्ट होगा इसमें, जैसे कि रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट व्हीकल भी इसमें ऐड किया गया है। सो देयर इज ए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल, ठीक है, व्हीकल्स, एंड दिस इज ए सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। ये क्या है, सिंगल स्टेज एंड लिक्विड रॉकेट है, एंड
गगनयान मिशन में 400 किलोमीटर का ये मिशन है, 400 किलोमीटर का मिशन है। लॉन्च व्हीकल जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स MK3 एंड जियो सिंक्रोनस सेम जो वहां पर यूज में ली गई थी, बट ये LVM-3 है, जियो सिंक्रोनस MK3। इसमें सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज है, 3 स्टेज है। यहाँ पे नेशनल काउंसिल बनाई गई है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी दिया गया है। तो ये मिशन जो है इसरो का इंडिजीनियस मिशन है, इसरो ने इसको इंडिजीनियसली, इट इज डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बाय द इसरो। ओके, सो यहाँ पर रशिया है, USA, रशिया एंड चाइना, इन तीनों ने मेन्ड मिशन भेजे हैं। मेन्ड मिशन किन किन के हैं? रशिया, चाइना एंड USA। और गगनयान प्रोग्राम जो है दैट इज विकास इंजन, इसके साथ अटैच किया गया है, विकास इंजन। एंड विकास इंजन के साथ साथ यहाँ पे विकास एज ए एक्रोनिम फॉर द विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन, लिक्विड फ्यूल्ड इंजन होता है ये, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम इज ऑल्सो एडेड एंड इसरो का रोबोट है जिसका नाम है व्योमित्रा। सो व्योमित्रा की टेस्ट फ्लाइट भी गगनयान से की जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गगनयान। व्योमित्रा, विकास इंजन इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड 3 कंट्रीज जो हैं जिनके गगनयान में मिशन, मेन मिशन है, USA, चाइना एंड रशिया, और इंडिया का ये इंडिजीनियस मिशन है। तो जैसे यहाँ से टेक ऑफ होगी ऐसे जाएगी फ्लाइट, फिर यहाँ पर बूस्टर स्टेज, यहाँ पर स्प्लैश डाउन होगा, लास्ट में 14 किलोमीटर तक फाइनल आ जाएगा ये, ठीक है। गगनयान मिशन जो है इसमें एक तो क्रायोजेनिक इंजन, इसरो इसको डेवलप कर रहा है, तो क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज में लिया जा रहा है, क्रायोजेनिक इंजन एंड मिशन गगनयान में, ठीक है। और फ्यूल जो होता है दैट इज -50 से -270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर है ये, इसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर एंड ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन का यूज लिया जाता है। एंड सेमी क्रायोजेनिक जो है इसरो डेवलप किया है इसरो ने, और केरोसिन का उपयोग किया जाता है। सेमी क्रायोजेनिक में किसका उपयोग किया जाता है? केरोसिन एंड द लिक्विड हाइड्रोजन का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 important missions of the science and technology, which is Gaganyaan, Aditya L1 and Chandrayaan mission. Next will be Navik and I will discuss after some time.